Hi friends, welcome on Yourpedia, and today our panel discussion is related to moot court and how to conduct it for recruitment in public sectors. So I'll be discussing with my members today what this moot court concept is all about and what things we have to take care and how as mentors we can help you to pass in moot court stage of your PSU recruitment. So before I go to each member and discuss their respective domains, let me tell you friends, moot court concept, as the name shows, it is for legal officers or the students who are from the law background to check their experience and practice skills basically for respective professions. Normally moot court concept is very much in fashion, or you can say that is in practice in the colleges, law colleges. Students do it, so they in the group they practice what actually is the actual environment of the court. So hypothetical case is discussed and everyone will behave like either lawyer or judge, and that is how it is conducted. When it comes to public sector, then moot court concept is little different. Why? Because now you are the single individual candidate and the panelist interviewers will become the bench or jury or the judges, and you have to take forward your case. That is how it is in the public sector. And Yourpedia being the largest platform to mentor for interview of the public sector, so we are conducting moot court for that public sector only. So our entire discussion is related to that only. So what research is for scientist, what teaching or communication is for teacher, or what communication is for manager, mooting is for lawyer. And the very interesting thing is, like in the mooting, combination of everything is there. I mean, you need to do little bit research as a scientist. You need to have good communication to put forth your facts and figures. As a manager, you need to have data with you. So you need to do research of the case. You need to have data and facts and figures very precisely written related to the case, and communication should also be very good. इन सब का combination अगर आपके पास है तो आप मूटिंग कर सकते हैं, तब अपना केस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसी का प्रैक्टिस योरपीडिया पे हम लोग आपको करवाते हैं. So now, Shubhya, can I start with you first? Yes, sir. Moot court में जो term moot है, Shubhya, Right. what do we understand by that? So moot means debate. Okay. डिबेट करना. बट इफ आई से इट आउट कि नॉर्मल डिबेट्स और इसकी डिबेट में बहुत डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस प्राइमरली इज यहाँ पे आप लीगल मैटर्स पे डिबेट कर रहे हो. Okay. आपकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होंगी, राइट? और द वे इट इज कंडक्टेड इवन दैट इज डिफरेंट. Okay. सो इफ आई कैरी इट आउट, यहाँ पे आप फैक्ट्स फिगर्स को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हो. यू हैव टू एम्फसाइज द फैक्ट्स फिगर्स, द लीगल टर्मिनोलॉजीज, जार्गन्स जो हमारे साथ में एडवोकेट्स, हमारे लॉयर्स साथ में बताएंगे. प्लस सर, इफ यू टेक इट आउट कंसिडरेशन, अगर आप नॉर्मली डिबेट करवाते हैं हाँ जी. या जीडी करवाते हैं, हाँ जी, हाँ राइट, जी. एक्सटेम्परी होता है, जैसे वी ऑल आर सिटिंग, बट द नंबर कुड बी Somebody say. इंक्रीज्ड, राइट? 8 नंबर हो सकता है, 9 हो सकता है. बट इन मूट कोर्ट इट इज 1 पर्सन, यू आर हर्ड वेरी, यू कैन से इफेक्टिवली, बहुत ध्यान से आपको सुना जाता Okay. है. ऑल्सो इट कुड बी मैक्स 2 पीपल, 2 से ज्यादा लोग नहीं होंगे आपके जब आप डिस्कशन कैरी आउट कर रहे हैं. अच्छा, इसमें शुभ्या, what is the way to address the bench और the judges? उनको Right. कैसे, क्या बोल के हम, जैसे नॉर्मली हम सर मैडम बोलते हैं, Sir, कैसे madam बोलते हैं हम? तो यहाँ पे सर मैडम तो वी डोंट स्पीक इट. Okay. यहाँ पे योर लॉर्डशिप, माय ऑनर, या फिर ऑनरेबल बेंच. तो मतलब योर लॉर्डशिप, माई लॉर्ड्स, योर ऑनर्स, तो मेल फीमेल मेंबर्स में सेग्रीगेट नहीं करते हम. ऑब्वियसली आप उनको एक पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो यू विल से योर लॉर्डशिप, या फिर आप माय लॉर्डशिप कह के, या फिर माय लॉर्ड्स कह के, या ऑनरेबल बेंच कह के आप उनको एड्रेस कर सकते हैं. Okay, one of my students who got selected in HPCL, I think last year, she told me that in the actual moot court in PSU, Right. there is lot of interruption from the panel. True. तो इंटरप्ट करते हैं, जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया तो 1-2 मिनट के अंदर उन्होंने इंटरप्ट कर दिया. तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल पब्लिक सेक्टर के जो इंटरव्यूज हैं? सर सपोज हम PSU's इंटरव्यूज में होता है हाँ जी. सर, नॉर्मली दे डू नॉट इंटरप्ट यू, राइट? Okay. नाउ इफ आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन एंड अगेन, यू नीड टू बी नॉट शोकेसिंग योर अग्रेशन टुवर्ड्स मी, राइट? यू नीड टू बी वेरी पोलाइट. Okay. यू नीड टू हैव अ लिंक अप ऑफ द आइडियाज कि जैसे जहां पे आपने लीव किया था वहां से आपने कैसे गैदर अप करना है, वो आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करना है. दैट इज व्हाई द जज, द इंटरव्यूअर, दैट इज अ जज, वो आपको बार बार इंटरप्ट करते हैं. तो उससे आपको चेक आउट योर अटेंटिवनेस irritate नहीं आल्सो. होना. हाँ, इरिटेट नहीं होना आपको, आपको बहुत पोलाइट रहना है, काम रहना है, पेशेंस शो करनी है. तो मल्टीपल इफ यू से ना सॉफ्ट स्किल्स, आपकी बहुत चीजें चेकआउट हो जाती है, और वो यही चीजें चेकआउट होती है. अच्छा, मेरे को ये भी इनपुट मिला था शुभ्या कि वहाँ पे जैसे नॉर्मल आपका इंटरव्यू चलता है, आप बैठ जाते हैं, पैनल होता है, बैठ जाता है, आप कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको खड़े होके अपना केस प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है. Right. तो इफ आई आस्क यू लाइक खड़े होके जो मैनरिज्म होना चाहिए या आपका बॉडी जेस्चर पोस्चर, वो कैसे होने चाहिए किसी कैंडिडेट के?
So see, आपको पहले एड्रेस करना है। एक तो मैं ये चीज बोलूंगी, हाँ खड़े होके आपने बोला बिल्कुल सही, हाँ जी। दैट यू शुड बी मेंटेनिंग द आई कांटेक्ट। लंबा जैसे चीजें रीडिंग जैसे नहीं लगना चाहिए। इफ यू आर स्पीकिंग आल्सो, Okay. इट शुड नॉट लुक लाइक आप रीडिंग करके बोल रहे हैं। योर कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, आई कांटेक्ट शुड बी मेंटेन। आपके बार बार आपको टैपिंग नहीं करनी है, राइट? इफ यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर टैपिंग द, आप वहां पे पोडियम पे बार बार हाथ से टैप कर रहे हो, शूज टैप कर रहे हो, ये सारे नेगेटिव्स Okay. हैं, राइट? ये चीजें आपको नहीं करनी है। हैंड जेस्चर्स करो, बट इट शुड नॉट बी मोर हैंड जेस्चर्स, एलैबोरेटिव हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए। बॉडी पोस्चर्स प्रॉपर आपको स्ट्रेट सिट में जैसे खड़े होना है। Okay. तो देयर आर सर्टेन, यू कैन से हम Etiquettes थिंग्स, which या are- एटिकेट्स व्हिच यू हैव टू शोकेस व्हाइल यू आर एड्रेसिंग। And dress, I believe, is a white shirt and coat और tie वगैरह। बट द टाई शुड बी Tie देयर, द should वे be यू there, आर हाँ, ड्रेस्ड अप, हाँ जी। इसमें टाई होनी चाहिए। तो फॉर्मल प्रॉपर आपका होना चाहिए, एंड लाइक डिजिटल वॉच होनी चाहिए अगर इफ यू आर वेयरिंग इट आउट। Okay. डिजिटल की जगह एनालॉग होनी चाहिए। Okay. नॉर्मली वी प्रेफर, आजकल हम डिजिटल यूज करते हैं, दैट शुड नॉट बी देयर। द स्पेक्टिकल्स दैट शुड बी प्रॉपर्ली, दीस आर द नॉट द स्पेक्टिकल्स टू बी यूज्ड, जैसे सर ने डाली नहीं यूज करनी है। प्रॉपर या तो हाफ रिम्ड या रिमलेस, दोज आर द फॉर्मल स्पेक्टिकल्स आपको यूज करनी है। गुड। सो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा पॉइंट जो शुभ्या मैम ने बताया, दैट आपको बहुत लंबा रीड करके नहीं बोलना होता, जो भरत सर भी बताएंगे बाद में। एक टर्म होती है मेमोरेंडम शीट्स, जो भरत सर उसके बारे में बताएंगे, कि आपको पहले 10-1 मिनट मिलते हैं। उस 10-1 मिनट में आपको अपने केस के बारे में जो इशू हैं वो लिखने होते हैं। और ऑब्वियसली रिसर्च का आपको एक और जो पॉइंट डिस्कशन डिफरेंस पॉइंट है कॉलेज में और पीएसयू में, कॉलेज में आपको केस दे दिए, उसको रिसर्च करने को बोल सकते हैं वो कि 2 दिन रिसर्च करो एंड कम आफ्टर रिसर्च। और रिसर्च टीम भी होती है, जैसे एक ने जिसने प्रेजेंट करना है केस और बाकी टीम में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको टाइम मिलता है। लेकिन पीएसयू में रिसर्च का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने वहीं पे बनाना होता है। और जजेस हेट इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, दे वांट दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड यू आर स्पीकिंग इट। तो आपको मेमोरेंडम शीट में से देख के वहां पे बोलना होता है, और आपको आई कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करके मेमोरेंडम शीट से। नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज अ लॉयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बेंच, ऑनरेबल बेंच, एंड you know the facts and figures, and you have made very clearly the issues of the case which you are going to present related to your client, and you are quite aware about the things or the case, how it has evolved in the lower judiciary, because normally moot court sometimes is conducted in the appellate court. It is not the real jurisdiction court or the first level court, it is in the next level. So sometimes they expect that you are already aware what has happened in the previous to your client, तो आपने उसकी नोटिंग्स की हैं, तो आपको केस पता है पहले। तो आपको अगर पहले का केस पता है, फैक्ट्स फिगर्स पता है, तो आपको उसको कैसे आगे लेके जाना, तो जज इसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये फैक्ट है कि जो लॉयर को चीज़ें पता हैं, टिप्स पे हैं, सारी चीज़ें याद हैं, वो अपना केस जीत जाता है। तो दैट इज व्हाट दे चेक कि क्या आपको केस सारा पता है कि नहीं। सो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, एंड आई बिलीव शुभ्या दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प देम, लाइक वी आर गोइंग टू चेक ऑल दीज थिंग्स, ईच मेंटर, एंड योर प्रैक्टिस फ्रेंड्स इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी सब लोग जानते हैं। हाँ, एक मैंने लैंग्वेज का पूछना था शुभ्या, कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हम बोलते हैं, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, यहाँ पे क्या होना चाहिए वैसे? सो नॉर्मली हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, बट यहाँ पे आई से यू प्रेफर इंग्लिश, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वोकल्स कैसे करना है, द वे वी आर एड्रेसिंग योर लॉर्डशिप, हाँ जी, हाँ जी, इंग्लिश में आप बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके लीगल लॉज हैं फ्रेंड्स, चाहे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर ले, एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो लॉज हैं, वो सारे के सारे आप इंग्लिश में आपको पता है, तो इसलिए इंग्लिश में बोला जाए तो दैट इज बेटर फॉर अस। नाउ भरत सर, सिरत, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद यू ओनली देन फर्स्ट, कि हम लोगों ने देखा यू हैड मेड वंडरफुल cases Yes, which previously have been asked in the public sector. Yes, sir. So you have made some kind of some kind of groups के Yes. यहाँ से वो केस पूछे जाते हैं. सर एक्चुअली देयर आर law is very vast, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट मैंने कुछ मेजर निकाले हैं जो पीएसयूज में ऑफन आस्क करे जाते हैं, ठीक है. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया और कमर्शियल लॉज हो गए, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ हो गया, सर्विस एंड लेबर लॉ के मैटर हो गए, वो जो रहते हैं यहाँ हर कंपनी में, है ना. उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस हो गया, जैसे क्योंकि इनके पाइपलाइन वगैरह सेटअप करना होता है, तो उसके रिलेटेड बहुत आता है, ठीक है सर. उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंपनी लॉ हो गया, और क्रिमिनल एस्पेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी. मतलब कि ये कुछ हेड हैं, इनके अंदर बहुत सारे लॉज आ जाते हैं. इनको आगे आगे चलते जाएं, अगर हम एक्सप्लोर करते जाएं तो बहुत सारी चीजें कवर करते हैं सर. और जो दूसरी चीज है, एक होता है इशू फ्रेमिंग होता है हमारा, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है. तो मैं एडवाइस करूंगी अपने जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ, कि जो मैंने हेड्स बताए हैं उनके ऊपर जितना पढ़ सकें उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको लॉ पता होगा ना, तो आप केस स्टडी देखोगे तो आप झट से इशू फ्रेम कर लोगे. वरना अगर आपको पता ही नहीं होगा तो इशू फ्रेम करने में बहुत टाइम चला जाता है. तो अगर इशू ही नहीं बन रहा तो आर्ग्यू कैसे करेंगे. तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन लॉज की, उतनी ज्यादा से ज्यादा करें. हाँ जी. तो जो हमें
लिमिटेड टाइम मिलेगा शुरू में, उसमें सारे के सारा केस तो इशू और उसके बेस पे आर्गूमेंट्स वो सारा तो हम नोटिंग्स नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर। तो व्हाट शुड बी डन ड्यूरिंग दैट, मतलब उसमें सर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, हाँ जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पता है, आर्बिट्रेशन पता है, तो जब आप केस स्टडी देखोगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा कि इसमें तो ये इशू बन सकता है। जैसे आपने अभी लिमिटेशन का बताया, ज्यूरिस्डिक्शन का बताया, अगर आपके दिमाग में वो चीजें पहले से हैं हाँ जी। तो आप झट से पकड़ लोगे वो चीजें सही है। कि यहाँ पे तो ये हो सकता है। तो लॉ का वही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने इजीली आप फ्रेम कर पाओगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले प्रैक्टिस करो, वहां पे अपना आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करो, सही है। वहां पे डिसाइड करो चीजों को, वहां पे जाके तैयारी ना करो, तैयारी पहले करके जाओ, वहां पे जाके बताओ उनको। सो एज वी डिस्कस फ्रेंड्स, रिसर्च का टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कुछ प्रीवियस जजमेंट्स का एग्जांपल देना पड़ता है टू कंसोलिडेट योर आर्गूमेंट। सो वो प्रीवियस जजमेंट्स रिलेटेड टू दोज केसेस विच सीरत जस्ट मेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी बात यह है कि आपको जो आते हैं केसेस रिक्रूटमेंट में, वो केसेस फिक्स हैं और उनके प्रीवियस जजमेंट्स भी फिक्स हैं और उनसे रिलेटेड जो आपको नॉलेज होना चाहिए लॉज का वो भी फिक्स है। तो अगर आप वो हमारा, आई थिंक सीरत यू हैव मेड दैट डॉक्यूमेंट ऑफ 35-40 पेजेस, उसके अंदर वो सब कुछ मेंशन है। आई एम वेरी श्योर यू मे बी रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि वो आपको रियली हेल्प करेगा अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स को रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इमीडिएटली वो चीज़ें याद अदरवाइज नहीं आएंगी। तो भरत सर, नाउ ओवर टू यू। सो द प्रेजेंटेशन, दो जैसे सपोज आप एंटर किए और आपको उन्होंने एक केस दे दिया, हाउ दैट 10 मिनट्स इज टू बी यूटिलाइज्ड? सर उस 10 मिनट में सबसे पहले रिटर्न में उसको आर्गूमेंट तैयार करने चाहिए अपने। ओके। और उसके बाद जो उसके फैक्ट्स होने चाहिए वो क्लियर मेंशन होने चाहिए, ताकि क्योंकि वो जब उसके साथ वो डिबेट होगी, जैसे जज के सामने अपने पॉइंट्स रखेगा, तो उसको बार बार नहीं उसे पढ़ना है। तो कोशिश करे कि वो एक बार लिख ले उन चीजों को और एक शॉर्ट क्लिप्स में जज को बताए, जिसको मेमोरेंडम शीट वगैरह बोलते हैं। और इसमें इशू जो होना चाहिए आपका, वो वेल डिफाइन होना चाहिए कि इशू क्या है। ओके। और लास्टली मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, दैट इज प्रेयर, कि आपको चाहिए क्या, किस लिए आप डिबेट कर रहे हो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रेयर क्या है, कि एट द एंड आप क्या मांग रहे हो। आप रिस्पोंडेंट की तरफ से भी हो सकते हो और पेटिशनर की तरफ से भी हो सकते हो कि आपकी डिमांड क्या है किसी भी चीज से। अब इसमें एक और बात आती है सर, कि जब भी आप अपने जो भी आप इशू रख रहे हो, जो भी उसमें चीजें रख रहे हो, दैट इज यूज दैट प्रीवियस केस। कोई भी केस, जैसे पीएसयू की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हमें पीएसयू के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई प्रेयर मांग रहा हूँ कि मुझे 10 करोड़ रुपए यहाँ पे हर्जाना चाहिए जज साहब, तो उसको मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि 10,000 रुपए दो। मैं कहूंगा कि इस केस में पर्टिकुलर पीछे ऐसा हुआ था, और यस, और इस सेक्शन के अंडर उस केस में भी ऐसा ही जजमेंट आया था, तो हम इस वजह से ही इस केस में ये चीज मांग रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और सेकेंडली मैं बात करूंगा कि कई बार क्या होगा कि जज आपसे क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ सकता है, तो आपको बड़े ही हम्बल तरीके से उसका आंसर देना होगा। और ज्यादातर मूट कोर्ट में अगर मैं बात करूं सर, अगर आप इतने अच्छे फैक्ट्स फिगर भी आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट अगर आपने जज की बात का एकदम सटीक सेक्शन से आंसर दिया, तो 90% चांसेस हैं कि आप वहां पे मूट कोर्ट में जीत जाते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है इसमें। प्लस जब भी कई बार 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं रिस्पोंडेंट और दैट इज पेटिशनर को साथ साथ भी वो लेके चल सकता है, दैट इज अप टू देम। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति अपना आर्ग्यू कर रहा हो, तो जब आपकी बारी आए तो बड़े हम्बलनेस से आपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, और विद मेंशन ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शंस। तो ये सब चीजें रहेंगी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आर्गुमेंट, लॉजिक, रीजनिंग, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज गोइंग टू कन्विंस द पैनल और ऑनरेबल द मेंबर्स ऑफ दिस पैनल और बेंच। तो उनको इंप्रेशन डालने के लिए ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू? भरत सर, सर हम मूट कोर्ट कंडक्ट करा रहे हैं, और आज से हमारे शुरू भी हो चुके हैं। हाँ जी। जिसमें हम एज अ जज की भूमिका निभाएंगे, और हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट है बेसिकली केस पे क्या बोल रहा है, और उसमें बैक टू बैक हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वी आर द जजेस, सो हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा कि उसका जो आंसर देने का तरीका है। देखो लॉजिक नहीं, मैं इसमें बात करूंगा, लॉजिक तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एक फैक्ट होना चाहिए। केसेस फैक्ट पे लड़े जाते हैं कि फैक्ट ये है और सच्चाई ये है और सेक्शन ये बोलता है, तभी आप उस केस को जीत पाओगे। नहीं तो हाँ, एक नेचुरल जस्टिस भी फिनोमिना आता है, बट इसमें इतना मैटर नहीं कर पाएगा वो। तो दैट इज अप टू कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो अपने बेसिकली सब्जेक्ट को लेके। राइट। सो टू कंक्लूड इट, शुभे मैम, जैसे भरत सर और सीरत जो हैं वो तो दे आर फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, मी एंड यू आर नॉट, सो हाउ वी कैन मेंटर द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू? सर रिलेटेड टू मैनरिज्म, कैसे आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन करनी है, सॉफ्ट स्किल्स कैसे होने चाहिए, आई थिंक इक्वलेंट टू योर, जब आप सिलेक्शन पे जाते हो
तो आपके टेक्निकल, आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर Similar. सॉफ्ट स्किल्स, द वे योर कॉन्फिडेंस इज Yes, बीइंग कैरिड, yes. व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक, आप डर तो नहीं रहे हो, तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस चाहिए, एंड विल बी गाइडिंग ऑन ईच एवरी डोमेन ऑफ द Yes, मैनरिज्म, व्हिच yes. इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ सेट ऑफ मैनरिज्म के हैं, विल क्रिएट अ वीडियो एंड विल शेयर इट आल्सो विद द स्टूडेंट्स कि कैसे आप उन पे इंप्रूव आउट कर सकते हैं। तो वो जो हमारे पास फ्रेंड्स कुछ केस स्टडीज हैं जो रिपीटेडली पूछी जाती हैं, उन केस स्टडीज का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है, एंड फॉल्ट फाइंडिंग तो किया जा सकता है। वी कैन सर्टनली डू दैट, वी कैन टेल यू वेयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड फर्दर मोर you practice, better it will be for all of you. So I believe, friends, we have covered more or less everything. So friends, now I invite each one of you, those who are getting the calls from public sector, to go for moot court. Let's start practicing for this, and I'm very sure आपको इससे benefit होगा and you will score good in the moot court. Thank you.